Hello everyone, welcome to Easy English Ed. And here I am today with a very new video from the very new textbook released by NCERT for class 9th English, Kaveri. So let's get started. Today we are going to start with the very first chapter, How I Taught My Grandmother to Read. कैसे मैंने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया. This is a very beautiful fictional story. Fictional means this is not real. The characters are not real and the story is entirely coming out of the mind of writer. And the story is written by Sudha Murthy. सुधा मूर्ति के बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. शी इज अ वेल नोन इंडियन ऑथर, social worker and philanthropist. Philanthropist means the people who are engaged in the works of charity, जो social service बहुत ज़्यादा करते हैं. She was born on August 1950 in Shiggaon, Karnataka. She is the chairperson of Infosys Foundation and has worked extensively to support education, healthcare and rural development in India. For her contributions to literature and social work, she has received several awards. उनके literature की field में इतने contributions हैं जिसके लिए उन्हें बहुत ही prestigious awards जैसे कि पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला है. So this was a brief introduction of the author. Now let's start the lesson. So as you can see that this story is all about a granddaughter teaching her grandmother to read. इस पूरी कहानी के टाइटल से हमें ये पता चल रहा है कि एक अपनी जो ग्रैंड डॉटर है, पोती है, उसने कैसे अपनी दादी को पढ़ना सिखाया. Before starting the story, we have some little questions here to reflect and respond. So let's take a quick look at those questions. Why is it important to learn how to read and write? क्यों जरूरी है पढ़ना, लिखना, सीखना? So first thing we can write to express our ideas, ताकि हम अपने ideas को clearly express कर सकें, लिखकर, बोलकर, right? Then to understand others ideas, लोगों के ideas को हम समझ सकें. Then next reason can be literacy opens door to better employment. हमें better jobs के लिए आप for better jobs and bright future you can say. अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आपको literate, if you are literate, you can get better jobs, etc. Right. Now the next part, there are 4 questions and you have to share these questions with your classmates and teacher in the classroom. So let's take a quick look. What are those 4 questions? Which language do your grandparents or elderly relatives speak? आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज बतानी है. इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपकी मदर टंग है या जिस भी भाषा में आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके घर के एल्डर रिलेटिव्स बात करते हैं. हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम? हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम? यहाँ पे एल्डरली रिलेटिव्स का ये मतलब है जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, राइट, बूढ़े लोग हैं. तो आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं एंड हाउ दे स्पेंड टाइम विद यू, राइट. यू कैन से कि हम उनके साथ बैठते हैं, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्टोरीज सुनाते हैं या आप उनके साथ पार्क जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, एनीथिंग इट कैन बी. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम? दिस इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन. बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. सब्जेक्टिव मतलब हर किसी के लिए इसका आंसर अलग होगा. तो आपका कोई भी फेवरेट एक्सपीरियंस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए उनके साथ ट्रैवल करना बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, व्हेन आई ट्रैवल विद देम. And what is something that the elderly in your family cannot do easily but enjoying watching you do? और ऐसा क्या है जो आपके घर के बुजुर्ग elderly people they cannot do easily, उनसे नहीं होता है, but जब आप वो काम करते हो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. Again very subjective question. जैसे कि मेरे लिए whenever I work with the computer, राइट, सो माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकम हैप्पी बिकॉज उनके एज में कंप्यूटर्स नहीं थे, उन्होंने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा है, बट जब वो मुझे देखते हैं सेम काम करते हुए दे बिकम वेरी हैप्पी. एनीथिंग इट कैन बी लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, एनीथिंग. ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर. Read the following passage. Match the highlighted word with the meanings given in the box below. So there are 8 words and this small passage जिसमें कुछ कुछ word आप देख सकते हैं highlighted है. तो हमें इन हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने हैं.
So let's start with this. The casting for the protagonist of our school's annual play was done after a lot of debate, as many good actors had auditioned for the role. We had decided to present an episode from an inspirational story. It was a life story of a group of children who worked with the community to spread literacy. Every day, we reached school early to practice with concentration. We waited eagerly for the final presentation. All of us played our roles in a very convincing manner, as our theatre teacher had guided us well. So, as you can see, that this small passage is all about a play which is being ऑर्गेनाइज इन अ स्कूल और उसी से रिलेटेड ये कुछ टर्म्स हैं. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टर्म प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द पर्सन हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, दैट इज प्रोटैगनिस्ट. सेकेंड वर्ड इज डिबेट. डिबेट करना यानी किसी से डिस्कशन करना. सो डिस्कशन इज योर सेकेंड वन. थर्ड इज एपिसोड. एपिसोड होता है पार्ट ऑफ अ स्टोरी. अगर आप कोई सीरियल्स देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो उसमें भी अलग अलग एपिसोड्स होते हैं. दीज एपिसोड्स आर पार्ट ऑफ स्टोरी. दिस इज द थर्ड वन. फोर्थ इज कम्युनिटी. यू ऑल नो पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया. एक साथ रहने जो लोग रहते हैं एक ही एरिया में, वो एक कम्युनिटी होती है. फिफ्थ वन इज कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फोकस. सिक्स्थ इज ईगरली, बहुत ज्यादा बेसब्री से यानी एक्साइटेडली. देन सेवेंथ वन इज कन्विंसिंग. कन्विंसिंग मीन्स बिलीवेबल, किसी को कन्विंस कर पाना किसी चीज के लिए, किसी को मना लेना, बिलीव करवा देना. सो दिस इज सेवेंथ वन. एट्थ वन इज गाइडेड, किसी को गाइड करना, डायरेक्शंस देना. दिस विल बी योर लास्ट वन. So I have presented all these terms with their meanings in a table. You can take a screenshot. Now let's start with the lesson. First part of the story. In this video we'll do only first part, and for the second part I'll be making a separate video. So let's get started. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. So this is a story of a girl जिसकी age कितनी है? 12 years. And where is she living? She lives in North Karnataka. You all know that Karnataka is a state of India, our country. और वो किसके साथ रहती है? अपने grandparents के साथ. Those days the transport system was not very good. उस टाइम में जो ये गर्ल नरेट कर रही है स्टोरी, जिस टाइम में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वहाँ रहती थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था. सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. यानी जो न्यूज़पेपर सुबह सुबह मॉर्निंग में डिलीवर होना होता था, वो आफ्टरनून में आता था. इट यूज टू टेक इट अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच दोज पीपल, बिकॉज वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं था. द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट. और जो वीकली मैगजीन्स होती हैं, जैसे जो हर संडे या हर मंडे किसी भी दिन आती हैं, वो हमेशा उस दिन के बाद नेक्स्ट डे आती थी, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड. All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. तो इस इनके एरिया के जितने भी लोग थे, वो सब क्या करते थे? बहुत ही ईगरली, बेसब्री से वेट करते थे उस बस का जो पेपर्स लेके आती थी, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट यानी सबकी चिट्ठियाँ डाक लेकर आती थी. At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. So, you all know that the language spoken in Karnataka is Kannada. तो उस टाइम एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ा लैंग्वेज की, त्रिवेणी. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. तो हमें यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि त्रिवेणी बहुत अच्छी राइटर थी. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड. वो जिस तरीके से स्टोरीज लिखती थी, दे वर वेरी ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग एंड वेरी बिलीवेबल. दे अपीयर्ड वेरी ट्रू. बहुत अच्छी लगती थी, लोगों को बहुत पसंद आती थी, बिलीवेबल थी, राइट. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people, and they were always very interesting. उनकी stories की जो themes होती थी, किस चीज़ के ऊपर होती थी? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. जो आम आदमी की, आम लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी. साइकोलॉजिकल मीन्स दे वर कनेक्टेड विद द ब्रेन. हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो भी हमारे आइडियाज या थॉट्स से ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आम लोगों की लाइफ में होती हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरीज उनकी होती थी. एंड दे वर वेरी इंटरेस्टिंग. पीपल लव्ड हर वर्क. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत ही कह सकते हैं दुर्भाग्य की बात है, दैट द ऑथर
त्रिवेणी शी डाइड वेरी यंग, बहुत छोटी एज में, बहुत यंग एज में, इन हर 40s में बी शी डाइड. इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स. तो हमें ऑथर बता रही हैं कि 40 years हो चुके हैं उनको मरे हुए, बट उनकी जो नॉवेल्स है वो अभी तक उन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. Now, one of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmveera then. तो उनका एक काशी यात्रे करके एक नॉवेल था जो एक सीरियल की तरह कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा में आता था. सो प्लीज रिमेंबर दैट ये जो सीरियल की बात हो रही है, यहाँ पे हमने एपिसोड्स बनाए हैं एक स्टोरी के, उनकी नॉवेल के, और उसको कन्नड़ा वीकली मैगजीन जिसका नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ मैगजीन, कर्मवीरा, उसमें पब्लिश किया जाता था अलग अलग एपिसोड्स में. इन द स्टोरी ऑफ एन इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड एन आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी. सो ये एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी काशी यात्रे, जिसमें एक ओल्ड लेडी क्या चाहती थी, शी वॉज वेरी कीन ऑन गोइंग टू काशी और वाराणसी. वाराणसी इज ऑल्सो नोन एज बनारस, और वहां पर एक बहुत ही फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, एक टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, दैट इज काशी विश्वनाथ. तो ये जो ओल्ड लेडी थी वो, उनका बहुत मन था, बहुत डिजायर था कि वो काशी जाए. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य. तो बहुत से हिंदूज को, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट वाज अ हिंदू पिलग्रिमेज साइट. सो मेनी हिंदूज दे हैड दिस बिलीव कि हम काशी जाएंगे, लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करेंगे, तो ये हमारे लिए अल्टीमेट पुण्य है. पुण्य होता है एक स्पिरिचुअल मेरिट, यानी आपने स्पिरिचुअली कोई बहुत अच्छी चीज अटेन कर ली है, बहुत पुण्य कमा लिए हैं. दैट इज द यू कैन से फ्रूट ऑफ योर गुड डीड्स. अगर आप कुछ बहुत अच्छा करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है, राइट? This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. So, in this novel, Kashi Yatre, it deals with how that old lady was struggling. उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, या उनके क्या प्रॉब्लम्स थे, और वो काशी क्यों नहीं जा पा रही थी, उस पूरा वो जो है उनका स्ट्रगल उस नॉवल में लिखा गया था. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल का कैरेक्टर था. ऑर्फन, यू नो, अनाथ, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको ऑर्फन कहते हैं, जिनका कोई नहीं होता है इस दुनिया में. तो एक यंग ऑर्फन गर्ल की स्टोरी है, हु फॉल्स इन लव एंड शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, बट उसकी शादी के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं होते हैं. सो इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी. तो एंड में जो ओल्ड लेडी, परहैप्स शी वाज सेविंग फॉर हर ट्रिप टू काशी, वो अपनी काशी जाने के लिए जो भी पैसे सेव कर रही थी, वो पैसे वो सारे उस यंग ऑर्फन गर्ल को दे देती हैं, और वो काशी नहीं जाती हैं. और वो क्या कहती हैं, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी. शी थिंक्स दैट द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, उनको ऐसा महसूस होता है, वो फील करती हैं कि इस ऑर्फन गर्ल की खुशियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी भगवान की पूजा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, राइट? सो माई ग्रैंड मदर, नाउ ऑथर इज टेलिंग अबाउट हर ओन ग्रैंड मदर. व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रैंड मदर? Krishtaka. Krishtaka never went to school, so she could not read. Now she is telling that her grandmother, she never went to school in her life. वो कभी लाइफ में स्कूल ही नहीं गई और वो पढ़ नहीं पाती. Every Wednesday the magazine would come. हर हफ्ते, हर वेंसडे को वो मैगजीन आती थी. एंड कौन सी मैगजीन थी? कर्मवीरा. You have to remember this, all right? And I would read the next episode of this story to her. So here the author of the story, the narrator, she's saying कि जब वो मैगजीन हर वेंसडे को हमारे घर पे आती थी, तो मैं अपनी ग्रैंड मदर को उस स्टोरी के एपिसोड सुनाती थी कि इसके आगे क्या हुआ, क्या हुआ. During that time she would forget all her work. और जब वो स्टोरी सुनती थी तो अपना सारा काम भूल जाती थी. एंड लिसन विद द, और कैसे सुनती थी? ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बिल्कुल फोकस्ड होके, और उनका ध्यान पूरी तरीके से स्टोरी में ही होता था. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. और वो इतना ध्यान से सुनती थी कि वो उन्हें पूरा याद हो जाता था, और बाद में वो उसको पूरे टेक्स्ट को अपने बिल्कुल सही सही तरीके से रिपीट कर पाती थी.
My grandmother too never went to Kashi. Now the author is saying कि मेरी grandmother कभी काशी नहीं गई हैं and she identified herself with the novel's protagonist. और वो खुद को इस नॉवल की जो मेन कैरेक्टर है, जो ओल्ड लेडी जो काशी जाना चाहती हैं, वो कहती हैं इसकी स्टोरी भी मेरी तरह है। वो खुद को उसकी जगह पर रख के देखती हैं कि मैं भी कभी काशी नहीं गई हूँ, राइट? सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग what happened next in the story. तो किसी से भी मतलब लोगों को भी इंटरेस्ट होता था, बट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे ऑथर की ग्रैंड मदर को है कि अगली स्टोरी के पार्ट में क्या हुआ। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और वो बार बार अपने ग्रैंड डॉटर को फोर्स करती हैं कि प्लीज इसे पढ़ो मेरे लिए कि इसमें क्या हुआ, बिकॉज शी इज वेरी एक्साइटेड टू हियर। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, अब जब वो अपनी पोती से सुन लेती हैं ग्रैंड डॉटर से कि क्या हुआ, अब वो क्या करती हैं, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, वो अपने फ्रेंड्स से मिलने टेम्पल के कोर्टयार्ड में, मंदिर के आंगन में जाती हैं। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा होकर क्या खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक। ऑल राइट, so this is a picture depicting the scene that the grandmother is discussing with her old friends, and here you can see some kids who are playing hide and seek, right? This is the courtyard of temple के आंगन में। Now let's move further. She would discuss the latest episode with her friends, और वो latest episode अपने friends के साथ, जो भी वो उनकी डॉटर ग्रैंड डॉटर उनको नरेट करती थी, वो अपने friends के साथ डिस्कस करती थी। At that time I never understood why there was so much of debate about the story, but नरेटर उनको जब ऑथर जब उनको बता देती थी कि क्या हुआ है स्टोरी में, वो समझ नहीं पाती थी कि क्यों लोग इतना डिस्कस करते हैं स्टोरी को। व्हाट इज देयर अबाउट काशी यात्रे, व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल दैट एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट इट, एवरीबडी इज डिस्कसिंग इट। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. Now the girl is saying that I went to attend a wedding. मैं एक शादी में गई थी अपने cousins के साथ अपने neighboring village यानी पास वाले गांव में। In those days a wedding was a great event. उस जमाने में उस टाइम पे शादी को बहुत बड़ा इवेंट मानते थे। We children enjoyed ourselves thoroughly. हम बहुत बच्चे जो बच्चे थे बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. So the kids are saying कि हम बहुत खाते थे, बहुत खेलते थे endlessly, savoring the freedom, enjoying the freedom because all the elders were busy. See, generally daily life में क्या होता है कि elders बच्चों को बोलते हैं आप ये करो, आप वो करो, they control them, they tell them आपको अपना homework करने का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, घर के हमारे daily chores में आप help कीजिए, right? But during a wedding function all the elders were busy with the arrangements, they वो सब अपने arrangements करने में, functions में busy होते हैं, and the kids get the most of the benefit and they enjoy, they get the freedom to eat and play and do whatever they like. So the narrator is telling us कि मैं बहुत enjoy करती थी। I went for a couple of days but ended up staying there for a week. So the girl said कि मैं कुछ दिनों के लिए गई थी, पर मैं वहां पे कितने दिन रुक गई, 1 week. When I came back to my village, जब मैं अपने गांव वापस आती हूँ, I saw my grandmother in tears. मैंने देखा कि जो मेरी grandmother है वो रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. Now the girl says कि मैं सरप्राइज रह गई, मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने कितनी भी मुसीबत आई हो, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आई हो, अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए नहीं देखा। What had happened? I was worried. Now the girl got worried कि क्या हुआ है जो मेरी दादी आज रो रही हैं। Ava, is everything all right? Are you okay? Now she is asking her grandmother, Ava, क्या सब कुछ ठीक है? आप ठीक हो? I used to call her Ava. अब ये जो गर्ल है, जो ग्रैंड डॉटर है, वो अपनी ग्रैंड मदर को अव्वा बोलती हैं। अव्वा का मतलब कनाडा में होता है मदर, विच इज स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। सी हर लैंग्वेज के थोड़े थोड़े वर्जन्स डिफरेंट होते हैं एक पूरे स्टेट के अलग अलग एरियाज में। तो नॉर्थ कर्नाटका की ये स्टोरी है जहाँ पे कनाडा में मदर को अव्वा बोलते हैं, और इसी वर्ड से ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मदर को एड्रेस करती हैं अव्वा। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। तो ग्रैंडमदर ने सिर्फ अपना सर हिला दिया दैट आई एम ओके, बट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। नरेटर जो ये गर्ल है वो कह रही मुझे समझ नहीं आया और मैं इसके बारे में भूल गई।
In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. रात को डिनर करने के बाद ग्रैंडमदर और ग्रैंडडॉटर छत पे सो रहे थे, जो ओपन टेरेस है, खुली हुई छत है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है। It was a summer night and there was a full moon. समर सीजन था, समर सीजन की एक रात थी और पूरा आसमान में there was a full moon. Avva came and sat next to me. Grandmother came and sat next to the girl. Her affectionate hands touched my forehead. उनके प्यार भरे हाथों ने मुझे छुआ, मेरे forehead को, मेरे माथे को छुआ. I realized she wanted to speak. मुझे लगा उन्हें कुछ बात करनी है. I asked her, What is the matter? क्या हुआ है? फिर से यहाँ पे उसने अपनी ग्रैंडमदर से पूछा, What happened? आपको क्या हुआ है? When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. Now the grandmother is telling that what happened to her. She's telling कि मैं जब young थी and मैं बहुत छोटी एज में थी जब उनकी मदर की डेथ हो गई थी. देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी. और उनकी मदर का लुक आफ्टर यानी ध्यान रखने के लिए, उनको गाइड कर, उनकी मदर की डेथ के बाद ग्रैंड मदर को देखने के लिए कोई भी नहीं था जो उन्हें गाइड करे. माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन. नाउ शी सेइंग कि उनके फादर ने उनकी मदर की डेथ के बाद दूसरी शादी कर ली और वो बहुत बिजी भी रहते थे अपने काम में. In those days, people never considered education essential for girls. So I never went to school. तो उन्होंने कहा कि उनके बचपन के टाइम्स में कभी भी एजुकेशन को गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया और इसी रीजन की वजह से उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा गया. आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन. मैं बहुत यंग थी जब मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे हो गए. आई बिकेम वेरी बिजी. सी स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि पहले एंशियंट टाइम्स में चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होती थी. जैसे गर्ल 11 12 या 13 साल की होती थी उनकी शादी कर देते थे. बाय द एज ऑफ 15 16 दे यूज टू हैव किड्स, है ना. अभी तो ऐसा नहीं होता है. वी ऑल आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू कम टू स्कूल एंड गेट एजुकेशन. गर्ल्स बॉयज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था. और ग्रैंड मदर के साथ ऐसा ही हुआ कि उनकी बहुत छोटी एज में शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए एंड फिर वो खुद बिजी हो गई अपने किड्स के साथ. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू. फिर उन्होंने कहा बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए और मुझे बहुत खुशी होती थी उनको खाना खिलाने में, उनके लिए खाना पकाने में. एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल. कभी कभी मुझे रिग्रेट मतलब किसी चीज को याद करके दुख करना, पछतावा करना कि मैं कभी स्कूल नहीं गई. सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. देन शी इज सेइंग कि मेरे को ये श्योर करना था कि एटलीस्ट मेरे बच्चे स्कूल जाएं और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी स्कूल जाएं, क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई थी. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी. एंड देन वी हैव अ स्मॉल क्वेश्चन आंसर टेबल हेयर. व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट, कि किस सिचुएशन का क्या इफेक्ट था. तो आपको यहाँ पे कॉजेज और इफेक्ट्स बताने हैं. सो लेट्स टेक अ क्विक लुक. The first is cause, the column where the causes are mentioned. In the second column, effects are mentioned. First thing is the morning papers arrive late in day and weekly magazines would come one day late. So क्या रीजन था कि जो हमारे न्यूज़पेपर्स लेट आते थे और मैगजीन्स लेट आते थे? सिंपल, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाज वेरी पुअर. Transportation system was very poor, you can write here. Then the grandmother never went to school. Why? Because अगर वो कभी स्कूल नहीं गई तो इसका क्या इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट हुआ उसका? दैट शी कुड नॉट रीड एंड राइट. उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. देन नेक्स्ट इज, नाउ द इफेक्ट इज शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन स्टोरी. वो बहुत ज्यादा स्टोरी में इंटरेस्टेड क्यों रहती थी? बिकॉज शी आइडेंटिफाइड विद द प्रोटैगनिस्ट ऑफ स्टोरी. आइडेंटिफाइड विद द, उनको लगता था कि वो मेरी ही स्टोरी है, बिकॉज वो खुद भी कभी काशी नहीं गई थी. राइट नाउ, एंड शी ऑल्सो द नरेटर यूज टू टेल हर द स्टोरी. एक एक एपिसोड बताती थी तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी. द फोर्थ वन, द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक. अब ये कॉज था कि नरेटर वेडिंग के लिए गई थी, तो उससे क्या हुआ? द ग्रैंड मदर शी मिस्ड हर एपिसोड एंड शी फेल्ट हेल्पलेस. उनको बहुत लगा कि मुझे कोई स्टोरी नहीं सुना रहा और वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. नेक्स्ट फिफ्थ वन, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल. क्यों नहीं गई वो कभी भी स्कूल?
because those days education was not considered essential for girls. Education was not considered, right? You can write here essential for girls. Girls के लिए जरूरी नहीं था. Sixth one is the grandmother regretted not going to school. तो उनको बहुत रिग्रेट था, पछतावा होता था कि मैं कभी स्कूल नहीं गई. तो इसका इफेक्ट क्या है कि उन्होंने अपने सारे बच्चों को, शी इंश्योर्ड दैट ऑल हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. ऑल राइट. नाउ द सेकेंड पार्ट. डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू विलेज? क्या आपको लगता है कि नरेटर को लगा था कि उसकी ग्रैंड मदर रोएंगी जब वो वापस आएगी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? सी आई थिंक कि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था. The narrator says that I was surprised. यहाँ पे mentioned है because she had never seen a grandmother cry even in the most difficult situation. So this is about grandmother. We get to know that grandmother is a very strong woman. She never cries even when she faced many problems in her life. So the narrator simply gone for a wedding and there was no reason that she would think that her grandmother is crying. So this was unexpected. And then the third part is how might the narrator help her grandmother. अब ग्रैंडमदर उसको कैसे अपनी नरेटर कैसे अपनी ग्रैंडमदर को पढ़ना और लिखने का जो डिजायर है, जो उनको रिग्रेट है कि उन्होंने नहीं पढ़ा, वो कैसे कर सकते हैं? सिंपली शी कैन स्टार्ट विद टीचिंग हर ग्रैंडमदर अल्फाबेट्स पढ़ा सकती हैं और उनको धीरे धीरे शी कैन टीच हर रीडिंग विद द वर्ड्स, वो फोनेटिक साउंड. जैसे हम एक बच्चे को स्कूल में अल्फाबेट्स सिखाते हैं फ्रॉम द क्लास 1 वी बिगिन लाइक दैट. ओके, सो इन द सेम वे शी कैन स्टार्ट टीचिंग हर ग्रैंडमदर. So this was all about the part 1 of the story, and I'll come with the next video with the second part. I hope you like the video. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel for regular videos. So that's all for today. Thank you very much. Take care. Bye bye.